children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, large numbers. We have learned to read, write and compare the numbers up to 6 digits in the previous classes. Let's now study the numbers having 7 digits and above. देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में 6 डिजिट नंबर तक पढ़े थे. अब हम 7 डिजिट नंबर और उससे ऊपर के नंबर्स को बारे में पढ़ेंगे. We know that largest 4 digit number is this, largest 5 digit number is this, and largest 6 digit number is this. And we read this number as 9,99,999. If we add 1 to it, we get the smallest 7 digit number. देखिए, ये आपकी ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है और अगर इस नंबर पे हम 1 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा ये नंबर जो कि आपका होगा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. सो this is the smallest 7 digit number. We read it as 10 lakh. The largest 7 digit number is this. We read it as 99,99,999. If we add 1 to it, we get the smallest 8 digit number. Similarly, देखिए आपके पास largest 7 digit number है. जैसे ही आप इसमें 1 प्लस करेंगे आपको मिलेगा smallest 8 digit number. So this is the smallest 8 digit number. We read it as 1 crore. We can repeat this process continuously to get the other largest and smallest numbers. तो ये process जो है हम इसे repeat कर सकते हैं. Okay? Indian place value chart. In Indian place value chart, 9 places are divided into 4 periods, that is ones, thousands, lakhs and crores. देखिए आप ये previous class में भी करके आए होंगे कि Indian place value chart में आपके 4 periods हैं. ठीक है, जैसे आपका ones, tens, hundreds जिस period में आता है that is ones, 1000, 10,000 जिस पीरियड में आता है thousands, इसी तरह से lakhs periods and crores period. On observing the above place value chart, we can see that 10 ones is equals to 110, 10 tens is equals to 100 is equals to 100 ones, 10 hundreds is equals to 1000 is equals to 100 tens. देखिए अगर आप इस place value chart को observe करेंगे तो आपको ये देखेंगे कि आप ये जो आपको given है ये equal है. Similarly, 10,000 is equals to 110,000 is equals to 100 hundreds, 10 10,000s is equals to 1 lakh is equals to 100,000, 10 lakh is equals to 110 lakh is equals to 110,000s, 10 lakhs is equals to 1 crore is equals to 100 lakhs, 10 crores is equals to 110 crore is equals to 110 lakhs. Example, write the following numbers in the place value chart. आपको कुछ numbers given है, आपको place value chart में लिखना है. तो place value chart में लिखने के लिए हम हमेशा entries जो है वो right side से करते हैं, right? So have a look. सबसे पहले आप लिखेंगे ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. Okay? अब आप जिससे आपके पास फर्स्ट नंबर दिया गया तो राइट साइड से लिखना शुरू कीजिए. सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, देन टेंस प्लेस पे है आपका 8, हंड्रेड्स प्लेस पे है 6, थाउजेंड्स प्लेस पे है आपका 5 और इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 4 एंड देन 3. तो ये इस तरह से आपने लिखा ए पार्ट. सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे. आपका वंस प्लेस पे है 6, टेंस पे है आपका 2, हंड्रेड्स पे है 9 एंड इसी तरह से आपके जो नंबर्स हैं 1, 2 एंड 5. तो देखिए जिस प्लेस पे नहीं आ रहा है कुछ भी, कोई नंबर नहीं आ रहा है, उसको आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे, राइट? तो आप इसी तरह से जो बाकी के आपके जो सी एंड डी पार्ट हैं वो भी आपके ऐसे ही होंगे. अब देखिए हाउ टू रीड अ नंबर. To read a number, the digits of the number are placed in the corresponding places of the Indian place value chart and read it from left to right, stopping for a moment after writing each period. For example, take a number, this, and put the digits of the number in the corresponding places of the Indian place value chart. अब किसी भी नंबर को हम किस तरह से रीड करेंगे? सबसे पहले आप उसे Indian place value chart में रखेंगे और उसके बाद आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है. अब आप देखिए जैसे करोड़ प्लेस पे है, 10 लाख प्लेस पे ये नंबर्स हैं, तो सबसे पहले आपका करोड़ प्लेस में है, तो हम इसे कैसे रीड करेंगे? द नंबर इज रीड एज 5 crore 18 lakh 63,247. How to write a number? To write a number, move right to left and separate the periods using commas or leaving space between two periods. अब आपको नंबर को रीड तो कर लिया लेकिन लिखना कैसे है? सबसे पहले आपको जो
प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है, आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है एंड देन आपने कॉमाज इंसर्ट करने हर पीरियड के बाद। जैसे कि आपके पास एक नंबर दिया गया है, राइट द नंबर बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स। आपको पहले ये नंबर आप लिख लीजिए और उसको आप कैसे सेपरेट करेंगे, जैसे हैव अ लुक, दिस इज योर नंबर 1। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले वंस पीरियड होता है, वंस पीरियड में आपका आता है वंस, टेंस, 100 यानी 3 नंबर्स, कॉमा, एक पीरियड खत्म, नेक्स्ट 1000 पीरियड में आपके 2 नंबर्स आएंगे, देन कॉमा, देन लैक्स पीरियड में आपके 2 नंबर्स आएंगे, देन कॉमा। तो ये इस तरह से आपने कॉमा इंसर्ट कर दिए गए। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पुट कॉमास टू सेपरेट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू पीरियड्स। ये देखिए, ये नंबर्स आपको दिए गए हैं और कॉमा लगा के हमें इनकी पीरियड्स को सेपरेट करना है। देखिए हैव अ लुक, आपके पास नंबर है, आप कैसे करेंगे, देखिए पीरियड्स, आपका वंस पीरियड जो आपका आता है उसमें आपका क्या है, 3 नंबर्स के बाद होगा, देन आपका 1000 पीरियड, कॉमा, एंड देन आपका ये सेपरेट हो गया। इसी तरह से सेकंड देखिए, आपका जो बी पार्ट है ये भी ऐसे ही होगा, पहले आप 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, देन 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे और इस तरह से आपने इन नंबर्स को सेपरेट कर दिया है। ओके चिल्ड्रन, बाकी आप खुद से करेंगे, सेम है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपको इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखने, कैसे लिखेंगे, देखिए हैव अ लुक, आपके पास एक नंबर है, उसमें कॉमास इंसर्ट ऑलरेडी हो रखे हैं, यानी उसमें आपके जो पीरियड्स हैं वो आपके क्या है, ऑलरेडी आपको पता है कि कौन से पीरियड है। आप चाहे तो उसमें वंस, टेंस, 100 लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता चल रहा है कॉमा से कि ये कौन से पीरियड में। सबसे पहले देखिए, आप इसे लैक्स पीरियड में आप इसे किस तरह से लिखेंगे, 15 लाख, देन आपका ये 68,000 एंड आपका क्या बचता है वंस पीरियड में, 296, 296। ओके चिल्ड्रन, बाकी सभी आपको ऐसे ही करना है, वर्ड्स में लिखना है, एंड वर्ड्स में लिखना इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, है ना, क्योंकि आप भी पिछली क्लासेस में भी करके आए, तो ये सेम ऐसे ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 अब आप खुद से करेंगे। प्लेस वैल्यू, place value of a digit in a number is the product of the face value of the digit and the place value of the place it occupies in the number. Place value is equals to face value of a digit into value of the place it occupies. देखिए place value आप सभी जानते हैं, place value कैसे निकालते हैं, ये प्रोडक्ट होता है फेस वैल्यू का और वो वैल्यू किस प्लेस पे है, कौन सा प्लेस वो ऑक्यूपाई करती है। टू गेट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर, से दिस नंबर arrange the digits in the Indian place value chart as shown. आपको ये डिजिट दी गई है और आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में रख देंगे। जैसे वंस, टेंस, 100 ये आपने इस तरह से रखा है। ओके, अब आप इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसे वंस इसकी वैल्यू जो है 1, देन यहाँ पे 10, देन 100, देन 1000, 10,000 और इस तरह से। ओके, और उसके बाद आप नंबर्स को अरेंज करेंगे राइट साइड से। ओके, और आपको जिसकी प्लेस पूछी जाएगी, जिसकी प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी, आप उसका मेंशन करेंगे। देखिए, फ्रॉम द प्लेस वैल्यू चार्ट वी सी दैट 9 आपका वंस प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू 9 की क्या होगी, देखिए 9 वंस प्लेस पे है तो 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9। इसी तरह से 7 आपका जो है 10 प्लेस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 70। 5 आपका 100 प्लेस पे है, तो आप क्या करेंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी 500। सिमिलरली 3 जो है आपका 1000 प्लेस पे है, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, सो ये आंसर विल बी 3000। सिमिलरली आप ऐसे ही करेंगे, 8 10,000 प्लेस पे है तो उसे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 6 लाख प्लेस पे है तो उसे लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख आ जाएगा। इसी तरह से 4 आपका 10 लाख प्लेस पे है तो 4 को आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 लाख हो जाएगा। और इसी तरह से 3 आपका करोड़ प्लेस में है तो आप 3 को करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके चिल्ड्रन, रिमेंबर दैट प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 whatever place it may occupy in a number। 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होगी, चाहे वो 1 प्लेस पे हो, चाहे 1000 प्लेस पे हो, चाहे lakhs प्लेस पे।
Standard and expanded form. When we write 7 crore 21 lakh 84,331 as, the number is said to be written in its standard form. When we write the number as the sum of place values of its digit, it is known as its expanded form. We can write the expanded form of the above number with the help of place value chart. देखिए ये जो आपको ये नंबर दिया गया है ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, और आपका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है कि जब हम उसे कैसे लिखते हैं, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट। जैसे आपको दिया गया है, देखिए सबसे पहले आप इसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे इस तरह से, और उसके बाद आप इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। जैसे देखिए 7 आपका है करोर्स प्लेस पे, तो आप इसे लिखेंगे 7 करोर्स प्लस, अब आपका नेक्स्ट क्या है 2 10 lakhs प्लस नेक्स्ट इज 1 lakh प्लस, अब आप देखिए कि आपका 10,000 प्लेस पे है 8, तो आप क्या लिखेंगे 8 10,000 प्लस आपका 1000 प्लेस में है 4,000 प्लस आपका 100 प्लेस पे है 300 प्लस आपका है 10 प्लेस पे 3 10s, एंड आपका 1s प्लेस पे कौन सा नंबर है 1, तो 1 1। और आप इसके बाद इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 को करोड़ से, 2 को 10 लाख से, 1 को लाख से, तो आपका क्या आएगा, देखिए 7 करोड़ है आपका प्लस 2 10 lakhs प्लस 1 lakh प्लस 8 10,000। ओके देखिए चिल्ड्रन, मैंने ये मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया है, मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, आप मल्टीप्लाई खुद कर लेंगे, क्योंकि देखिए 7 को आपने क्या करना है, 7 को आपने से 1 करोड़ है तो आप इसे 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, है ना। इसी तरह से आपका ये जो 2 10 लाख है 2 इंटू 10 लाख, ये इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरह से देखिए अब आपका 4000 है, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 प्लस 300 प्लस 3 10s प्लस 1 1। सो दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी आपने उस नंबर को एक्सपेंड करके लिख दिया है। ओके चिल्ड्रन, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं हम। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है हर डिजिट की। चलिए हैव अ लुक। आपके पास एक नंबर है ए पार्ट में 2,51,628। आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ओके 8 की प्लेस वैल्यू इज 8 क्योंकि 1 प्लेस पे है, 2 की प्लेस वैल्यू 6 आपका 100 प्लेस पे है तो 600 आपका, देन 1000 प्लेस पे है 1000, 5 आपका किस पे है 10,000 प्लेस पे तो 5, ये आपका हो गया 50,000, एंड 2 है आपका लैक्स प्लेस पे तो ये इस तरह से आपका हो गया 2 लैक्स। ओके चिल्ड्रन, प्लेस वैल्यू सभी को निकालनी आती है, आई एम श्योर आप लोगों को, तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपने इसी तरह से करने। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो देखिए कैसे लिखना है। देखिए आपके पास एक नंबर है, चलिए आपके पास एक नंबर है 3,21,756। ओके आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख। सबसे पहले लाख प्लेस पे है तो आप इसके आगे लगा दीजिए 5 zeros, ओके, कमा, प्लस 2 आपका है 10,000 प्लेस पे, प्लस 1 है आपका 1000 प्लेस पे 1000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 6। ओके चिल्ड्रन, अब सारे ही क्वेश्चंस आपने इसी तरह से करने हैं, सभी आपके जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में है।
critical thinking. Write the smallest 8-digit odd number using all odd digits. अब देखिए आपको स्मॉलेस्ट 8 डिजिट लिखनी है बट ऑड नंबर्स में, और उसमें सारे आपके ऑड डिजिट्स आने चाहिए. इसे आप खुद से करेंगे. Comparison of numbers. While comparing two numbers, we follow the given rules. The number with more digits is greater than the number with less digits. 2. When the number of digits are same, we compare the digits in the leftmost place. The number with the larger digit is greater. Third, if the digits at the leftmost place are same, we compare the next digits. We go on comparing till we reach at the ones digit in both the numbers if required. देखिए comparison of numbers, ये भी आपको I'm sure आता होगा. मतलब कि हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो नंबर में से किस में ज़्यादा डिजिट्स हैं. जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगी वो ग्रेटर होगा, और अगर सेम डिजिट हुई तो हम क्या करेंगे, आप लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखेंगे, और अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट आपकी ग्रेटर है जिस भी नंबर में, वो आपका ग्रेटर होगा. और अगर दोनों ही डिजिट्स में यानी दोनों ही नंबर्स में आपके लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम है तो देन हम नेक्स्ट डिजिट में मूव करेंगे. चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं. विच इज ग्रेटर. आपके पास दो नंबर्स हैं, दिस नंबर एंड दिस नंबर. सबसे पहला जो स्टेप है हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर. सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8. इस नंबर में 9 डिजिट्स हैं और उस नंबर में 8 डिजिट है, तो अनडाउटेडली दिस नंबर इज ग्रेटर. ओके, चलिए एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं. इसमें आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, इनको कंपेयर करते हैं. सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. अच्छा, अब इसमें तो नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट को लेते हैं. चलिए सबसे पहले हम इसे इस तरह से लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको हम इजी कर देते हैं. 43,875. नेक्स्ट इज 26,58,672. देखिए नंबर ऑफ डिजिट तो सेम हो गई. अब एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए 5, दोनों में इक्वल है, इसे कट कर दीजिए. नेक्स्ट डिजिट में मूव करेंगे, दोनों में ही 2 है. फिर नेक्स्ट डिजिट में मूव करेंगे 6, दोनों में ही 6 है. अब नेक्स्ट डिजिट में मूव करेंगे तो देखिए इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो विच वन इज ग्रेटर, 5 पड़ा होता ऑब्वियसली. दैट मीन्स ये जो आपका नंबर है ये आपका ग्रेटर. ओके चिल्ड्रन. एग्जाम्पल 3, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर. आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर में करना है. देखिए आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा एंड डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा. इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है. तो देखिए आप देख के बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर है. सबसे पहले ये पार्ट देखते हैं. चलिए लेट्स काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अनडाउटेडली ये नंबर आपका ग्रेटर है. देन नेक्स्ट बी पार्ट, नंबर्स काउंट करते, डिजिट्स काउंट करते हैं. 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7. तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेट. ये तो बहुत ईजी है, आप इसे खुद कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं. तो चलिए देखते हैं, कंपेयर करते हैं इनमें. सबसे पहले देखिए आपके पास ये नंबर्स हैं, आप उन्हें कंपेयर कैसे करेंगे. सबसे पहले आप उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लीजिए. तो आप देखेंगे कि ये नंबर एंड दिस नंबर, इन दोनों में ही सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. तो 9 और 3 में से कौन सा आपका छोटा होगा, ऑब्वियसली 3. 3,52,187 इज लेस देन 9,46,835. चलिए अब ये दोनों डिजिट्स का हमारे पास कोई काम नहीं है क्योंकि हम इन्हें कंपेयर कर चुके हैं. अब नेक्स्ट जो आपके 3 नंबर्स बचे उन्हें कंपेयर करते हैं. इसमें देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आपके 9, इसमें भी 9 और इसमें आपके 7. सो नेक्स्ट स्मॉलर नंबर इज दिस 62,40,185. नेक्स्ट आपका क्या होगा, देखिए अब आपके पास दो नंबर्स बचे. इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आपके 9 और इसमें भी 9. तो देखिए आप एक्सट्रीम लेफ्ट में देखेंगे ये 1 है और ये 3 है. तो कौन सा आपका छोटा होगा, ऑब्वियसली दिस नंबर. सो दिस नंबर इज 11,82,56,4
438 is less than 37 crore 25 lakh 46,189. So this is your ascending order, यानी कि छोटे से बड़ा. ओके चिल्ड्रन, बाकी आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. International place value system. In Indian number system, we have periods of ones, thousands, lakhs, crores, etc. While in international number system, instead of lakhs, crores, etc., we use millions, billions, etc. The international place value chart is given below. देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट तो आपको पता है. अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है कि आपके पास जैसे इंडियन सिस्टम में होता है वंस पीरियड है, थाउजेंड्स पीरियड है, लाख्स पीरियड है, करोर्स पीरियड है, बट इंटरनेशनल में ये नहीं होता. आपके इंटरनेशनल में हम लैक्स और करोड़ की जगह यूज करते हैं मिलियंस एंड बिलियंस. जैसे कि आपको दिया हुआ है चार्ट, देखिए वंस, टेंस, 100 आपके वंस प्लेस पे, 10,000, 1000, 10,000 एंड 100,000 एक एक्स्ट्रा है 1000 प्लेस. इसके बाद मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, दिस इज योर मिलियंस पीरियड, एंड बिलियन, 10 बिलियंस, 100 बिलियन, दिस इज योर बिलियंस पीरियड. ओके, तो देखिए ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है इसमें आपके कितने हैं, 4 पीरियड्स हैं, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस. ओके, तो आप ध्यान से देखिए आप इसे, जैसे कि आपके इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या था कि आपका 10,000 पे खत्म हो जा रहा था, बट यहाँ पे 100,000 भी है. इसी तरह से मिलियन में 10 मिलियन के बाद आपका 100 मिलियंस भी है. The above place value chart shows 4 periods, namely ones, thousands, millions and billions. Each of these periods has 3 divisions and the value between any 2 periods varies by a factor of 1,000. While reading the number, all the digits in the same period are read together and the name of the period except the ones is read along with them. From the above chart, we can conclude that इस chart से आप क्या conclude कर सकते हैं that 100,000 is equals to 1 lakh, है ना. कैसे, जैसे देखिए 100,000 आपको दिया गया है. आप देखिए जब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या था 1000, 10,000, 1 लाख, यानी कि 100,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख. इसी तरह से 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 lakhs, 10 millions is equals to 1 crore and 100 millions is equals to 10 crore. Example, write the number names for each of the following using international place value chart. अब आपको क्या करना है, इनको इंटरनेशनल सिस्टम में इनका नंबर नेम करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, again same, starting from right, enter all the digits of the given numbers into the international place value chart and then read the number from left to right. देखिए सबसे पहले आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे किस तरह से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000. ओके, नेक्स्ट इज मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. ओके, सो सबसे पहले हम राइट से शुरू करते हैं. 5 2 8, ये आपका वंस पीरियड हो गया. देन मूव ऑन टू नेक्स्ट पीरियड, दैट इज 1000. 4 6 5. ओके, देन नेक्स्ट आपका है 2 3 7. सबसे पहले आप इस तरह से अरेंज कर देंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में. अब इसे हम कैसे रीड करते हैं, रीड हम हमेशा कहाँ से करते हैं, राइट से. देखिए ये आपका मिलियंस पीरियड में है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 732 मिलियन. इसके बाद आपका आता है थाउजेंड्स प्लेस, तो इसे हम किस तरह से रीड करेंगे, 564,000. 564, और अब आपका बचा लास्ट वंस पीरियड में 825. 825. ओके चिल्ड्रन, अब आपको जो नेक्स्ट नंबर है आप उसे भी इसी तरह से करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में इस तरह से उसे लगाएंगे और फिर आप उसे किस तरह से लिखेंगे, देखिए 5,873,268,942.
क्वेश्चन नंबर 1, रीराइट द फॉलोइंग इन इंटरनेशनल सिस्टम विद सूटेबल कॉमर्स। आपको क्या करने हैं, आपको कुछ नंबर्स दिए गए लेकिन उनके बीच में कॉमा नहीं लगाए गए हैं, तो आपको इनके बीच में कॉमास लगाना है यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम। सो हाउ अ लुक, देखिए कैसे लगाना है। सबसे पहले आपके पास एक नंबर है, सबसे पहला जो आपके ए पार्ट है वो है आपके पास एक नंबर 1 2 4 5 3 2 एंड बी पार्ट है आपका 3 8 7 4 9 5 1। अब देखिए आपको कॉमास कैसे लगाने हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में आपको पता है हर पीरियड में 3 नंबर्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 कॉमा, नेक्स्ट में देखिए 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। तो ये इस तरह से आपने कॉमास लगाने। ओके, बाकी के पार्ट्स आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए आपके पास है ए पार्ट, नंबर इज 2 5 6 8 3 2। अब देखिए आपके पास इसमें ऑलरेडी कॉमास लगे हैं, आपको जस्ट वर्ड्स में लिखना है बट इंटरनेशनल सिस्टम में। देखिए दिस इज ए 1s पीरियड, दिस इज ए 1000s पीरियड। आप इसे किस तरह से लिखेंगे, 256 1000 832 832। Okay children, next B part is देखिए ones, thousands and this is million। आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं अपने, अगर आपको थोड़ा सा इसको और कन्वीनियंट करना है तो आप लिख सकते हैं जैसे ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000 and million। So अब आप इसे कैसे लिखेंगे, 2,613,000 and 285। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इसमें जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है।